Hello everyone. We are going to study now motion in one dimension. But before going to the details of motion in one dimension, I would like to recap the few basic concepts of trigonometry for you all. So I will not assume anything about the viewers that you have any prior knowledge of trigonometry. I will start from the very basic definition of the trigonometric functions. So in order to start that, we will take a unit circle centered at origin of the coordinate axis. यहाँ पर हम एक यूनिट सर्कल बना लेते हैं. I am using a piece of cardboard to make a perfect circle. So this is my circle and this is my rectangular coordinate system. So I have taken a unit circle centered at the origin of the rectangular coordinate system. ये हमारा x axis है and this is y axis and this is my origin. Unit circle centered at origin O. This side of the axis is my positive axis and this side will be negative axis. Similarly, ये ऊपर वाला which is going upward is my positive y axis and which is going downward will be my negative y axis. Now I will take a point P on the circle and draw the position vector of this point. This makes an angle theta from the positive x-axis. Another important point to note here is that the angle which is made from the x-axis which will move in the anti-clockwise direction, उस एंगल को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. तो जो भी एंगल हम यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाएंगे इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव एंगल. और अगर हम कोई एंगल एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहे हैं दैट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव एंगल. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ अब जब मैं इस पोजीशन वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस लेती हूं तो हाउ विल आई टेक दैट. एक मैं परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप करूंगी ऑन द एक्स एक्सिस. इस पोजीशन वेक्टर का ओपी का प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस विल बी ओएम. ऐसे ही अगर मैं इस ओपी का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे लेती हूं दैट विल बी पीएम. एंड दिस पीएम इज इक्वल टू ओएम. Now let us define the projection of OP on the x-axis जो कि OM है as cos theta. Projection of OP on x-axis OM is equal to cos theta. This is my definition. Similarly, projection of OP on y-axis, that is ON. This is defined as sin theta. ये मेरी डेफिनेशन है कि OM और
another important point is that this is a unit circle, so OP is 1 unit. Agar if I'm taking a unit circle, then the projection of OP on x-axis, that is OM, is defined as cos theta, and the projection of OP on y-axis is defined as sin theta. If we take this definition, बाकी सब कुछ इससे फॉलो होगा कि हमारा कैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिहेव करेंगे, और हम इससे बहुत सारी आइडेंटिटीज लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं इफ यू टेक दिस डेफिनेशन. नाउ आई विल राइट द कोऑर्डिनेट्स. इस पॉइंट को मैं ए लिख लेती हूं, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी. तो मेरे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1 0. OA इज 1 यूनिट. बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 1. ये कोऑर्डिनेट्स लिखने से हमें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी. सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस डायरेक्शन में x axis is negative. It will take the negative values. So this is -1 0. और d के coordinates क्या होंगे? In this direction, y axis will be negative. So 0 -1. तो हमने अभी तक क्या किया? We have defined our sin theta and cos theta, और मैंने उसके बाद अपने चारों पॉइंट्स A, B, C, D के कोऑर्डिनेट्स लिखे. अब हम एक बहुत अच्छी चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं इस यूनिट सर्कल से. अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की ये डेफिनेशन है, देन इफ आई टेक अ ट्राइंगल OPM, टेकिंग ट्राइंगल OPM, हम यहां से क्या लिख सकते हैं? दिस OM बाय डेफिनेशन इज कॉस थीटा, PM बाय डेफिनेशन इज साइन थीटा. क्यों? क्योंकि PM ON के बराबर है, एंड ON इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑपरेटर ऑन OM ऑन y एक्सिस. फिर हम ट्राइंगल OPM से वी कैन राइट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो आई कैन राइट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर. इससे हमें क्या मिल जाएगा? OM इज cos थीटा, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मिल गई, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. This is first most important result of trigonometry. अब हम देखते हैं कि अब हम और क्या चीजें इसमें इस यूनिट सर्कल से निकाल सकते हैं फॉलोइंग दिस डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा. इसको रख कर देते हैं. नाउ वी विल कैलकुलेट सम इंपॉर्टेंट एंगल्स फॉर साइन एंड कॉस. ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन ऑफ 270, साइन ऑफ 360. हम यही सारे एंगल को साइन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं. पहले कॉस देखते हैं. तो मेरा कॉस का क्या डेफिनेशन था? द प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस, OM. OM मेरा कॉस थीटा है व्हेन दिस इज थीटा. अगर मेरा थीटा 0 डिग्री है तो दिस OP विल कम हियर ऑन द एक्स एक्सिस. तो प्रोजेक्शन OP का ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? OA. और OA हमारा ये यूनिट सर्कल है, तो OA इस सर्कल का रेडियस है जिसका
जो 1 यूनिट्स है, तो कितना होगा हमारा cos 0 डिग्री विल बी 1. यू कैन इजिली सी फ्रॉम दिस यूनिट सर्कल. अब मैं कैलकुलेट करना चाहती हूं cos 90 डिग्री. cos 90 का क्या मतलब है? दिस थीटा विल बिकम 90 डिग्री. तो OP विल कोइंसाइड विद OB और OB का प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस विल बी 0. तो cos 90 कितना हो गया? 0. Similarly, you can also calculate if I take theta is equal to 270 डिग्री और 270 से पहले हम 180 डिग्री, मैंने यहां मिस कर दिया, हम यहां पे 180 डिग्री और cos 180 डिग्री भी कैलकुलेट कर सकते हैं. These are the most simplest angles which you can calculate. तो cos 180 कितना होगा? थीटा 180 का मतलब हमारा OP किससे कोइंसाइड करेगा? OC से. और OC एक्स एक्सिस में उसका प्रोजेक्शन कितना होगा? -1, क्योंकि दिस विल कोइंसाइड विद OC और क्योंकि ये हमारा यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का रेडियस है, तो दिस विल अगेन बिकम, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, सो दिस विल बिकम -1. सो मेरा cos 180 डिग्री हो जाएगा -1. ऐसे ही आप 270 और 360 के लिए निकाल सकते हो. जब मैं 360 के निकालूंगी तो आप देखोगे कि इट विल अगेन कम बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट. तो cos 2 पाई, अगर इफ आई राइट इन रेडियंस और अगर हम डिग्री में रखते हैं, cos 360 कितना होगा? अगेन इट विल बिकम 1. तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आ रही है? दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इट रिपीट्स आफ्टर 2 पाई. सो दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैज अ पीरियड ऑफ 2 पाई. मैंने अपने पिछले सिंपल हार्मोनिक मोशन के वीडियोस में पीरियड के बारे में डिटेल में बात की है कि पीरियड क्या होता है और हम फंक्शंस का पीरियड कैसे निकालते हैं. तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि cos का पीरियड 2 पाई होगा, क्योंकि इट इज रिपीटिंग इट्स वैल्यू आफ्टर 2 पाई. तो cos ऑफ 360 विल अगेन बिकम 1. तो बहुत ही इजीली हम सारे एंगल्स की वैल्यू इस यूनिट सर्कल डेफिनेशन से लिख सकते हैं. नाउ आई वांट टू राइट sin 0. साइन का डेफिनेशन क्या था? साइन हमने डिफाइन किया था OP का प्रोजेक्शन ऑन द y एक्सिस. ON इज डिफाइंड एज साइन थीटा. तो अगर थीटा मेरा 0 है तो ON, तो OP अगेन इट विल कोइंसाइड विद OA. इसका प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस विल बी हाउ मच? 0. सो साइन 0 डिग्री विल बी 0. तो जितनी भी cos की सारी वैल्यूज x एक्सिस से आएंगी और sin की सारी वैल्यूज y एक्सिस से आएंगी. अब मुझे निकालना है sin 90. जब थीटा मेरा 90 डिग्री है तो मेरा OP OB से कोइंसाइड करेगा. OB का प्रोजेक्शन ऑन OB ऑन द y एक्सिस विल बी 1. इसीलिए sin 90 1 होता है. देयर इज नो नीड टू क्रैम एनीथिंग. तुम यहां से यूनिट सर्कल से यू कैन इजिली सी, यू कैन इजिली चेक. अगर भूल भी जाओ तो इसमें आप इजिली चेक करके लिख सकते हैं सारी वैल्यूज. नाउ sin पाई, sin 180 डिग्री विल बी हाउ मच? दिस विल कम हियर एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन द y axis is 0. So sin 180 will be 0. Similarly, you can write for sin 270. Sin 270 इधर आएगा, will be -1. Sin 360 will be how much? It will again become 0. तो यहां से आप जनरलाइज कर सकते हो, फॉर ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई 180 डिग्री साइन की वैल्यू 0 होगी, और cos के लिए ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 के लिए cos की वैल्यू 0 होगी. तो ये सारे एंगल्स हम इजिली लिख सकते हैं. तो मैंने जनरलाइज कैसे किया था कि जब मैंने कैलकुलेट किया साइन 0 मेरा 0 आया, साइन 180 0 आया, साइन 360 फिर से 0 आएगा, और ऐसे ये वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट करेंगी. इसीलिए मेरे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड भी 2 पाई होगा. सो बोथ साइन थीटा एंड कॉस थीटा दे हैव अ पीरियड ऑफ 2 पाई.
बिकॉज दे रिपीट द वैल्यू आफ्टर 2 पाई। इसीलिए हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं और मैंने बोला था कि हम इसको लिख सकते हैं कि फॉर ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई दिस विल गिव 0। और सिमिलरली हम कॉस के लिए क्या बोल सकते हैं, कॉस 90 0 आया। क्यों? क्योंकि इसका प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस इज 0 जब मैंने थीटा 90 डिग्री लिया। सिमिलरली जब मैं 270 डिग्री लूंगी तो भी OD का प्रोजेक्शन ऑन OA विल बी 0। फिर ये ऐसे रिपीट होगा, और ये कब रिपीट होगा, फॉर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। उसके लिए हम कॉस की सारी वैल्यू 0 लिख सकते हैं। अब ये सारे एकदम डायरेक्टली हमें एंगल्स हम इस यूनिट सर्कल से लिख सकते हैं। अब कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग एंगल्स हैं और जो हमें बार बार कैलकुलेशंस और प्रॉब्लम्स करने के लिए जरूरत पड़ता है, जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जिसका हमें साइन और कॉस की वैल्यू हमें बार बार जरूरत पड़ती है। वो हम इस अपनी कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा की डेफिनेशन से कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट सिंपलेस्ट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री की क्या खास बात है? अब इसी ट्राइंगल में मैं इसको ड्रॉ करूंगी जब मेरा थीटा 45 होगा। यहां पर जो दोनों मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं दे आर 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंगल मेरा कितना है, ये 90 डिग्री। अगर मुझे थीटा 45 चाहिए तो ये एग्जैक्टली इसको बाइसेक्ट करेगा, सेंटर से जाएगा। तो अगर मैं ये 45 डिग्री बनाती हूं तो इसमें देखिए क्या खास बात है। अब ये मेरा पॉइंट P है, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं P से ऑन OA। अब देखिए इसमें इन ट्राइंगल OPM इफ दिस एंगल इज 45, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री है। तो जो थर्ड एंगल बचा वो कितना होगा, उसको भी 45 डिग्री होना पड़ेगा। तो अगर ये 45 डिग्री है, और हमें एक और बात हमें अपनी बेसिक मैथ से पता है कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इससे हमें क्या होगा, तो और इस टाइप के ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं टर्मिनोलॉजी के लिए, आइसोस्केलिस ट्राइंगल, व्हेन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो और कौन कौन सी साइड्स इक्वल होंगी, OM बिकम्स इक्वल टू PM। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इस ट्राइंगल की कि दिस ट्राइंगल इज आइसोस्केलिस। ये जस्ट एक नाम है जिसमें कि जिस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होंगी, क्योंकि हमने एक एंगल हमने फिक्स कर दिया 45, तो दूसरे एंगल को अगर एक 90 है तो दूसरे थर्ड एंगल को 45 ही होना पड़ेगा। जब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो हम आप यहां पे क्या ऑब्जर्व करोगे कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो मेरा OP का प्रोजेक्शन है ऑन एक्स एक्सिस OM, इट बिकम्स इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन Y एक्सिस। इसका मतलब यहां से हम देखकर डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि मेरी 45 डिग्री एंगल साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज इक्वल होंगी। अब उसको निकालेंगे कैसे, ये बहुत ही सिंपल है। हम कैसे निकालेंगे इसको, लेट दिस OM बी A, PM को भी हमने A लिख लिया बिकॉज दे बोथ आर इक्वल, हमने अभी आर्ग्यू किया। और जब ये इक्वल है हम फिर से इस ट्राइंगल में OPM में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और बिकॉज दिस इज अ यूनिट सर्कल, OP इज 1 यूनिट्स, तो मैं क्या लिख सकती हूं, एक दो पॉइंट्स लिख लेते हैं। फॉर 45 डिग्री OPM
is an isosceles triangle. ये just terminologically so that if you come across this word you know the meaning. जिसकी two sides are equal. तो OM is equal to PM. Now using Pythagoras theorem in OPM, we can calculate OP square is equal to OM square plus PM square. OP is 1 because this is a unit circle. OM by definition is cos theta. अभी हम इसको a लिखते हैं प्लस a square plus a square. 1 is equal to 2a square. This will give me a is equal to 1 by root 2. तो यहां से हमें क्या पता चला कि for 45 डिग्री मेरा cos 45 डिग्री and sin 45 डिग्री will be equal to 1 by root 2. Is equal to sin 45 degree. This is equal to 1 by root 2. तो कोई भी अभी तक जितने भी हमने एंगल्स देखे कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है. Just from the unit circle, from the definition of sin theta and cos theta, you can find all the angles. Now, अब हम we will calculate two more important angles, 60 degree and 30 degree. कि वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर कोसाइन एंड साइन. So now we will calculate cos 60 degrees and sin 60 degrees. For this, again I will rub this क्योंकि मेरा थीटा 60 डिग्री है. सो रफली इसका हाफ हमने कैलकुलेट किया 45 डिग्री, तो 60 डिग्री इससे ज्यादा होगा. तो मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन से इसको ड्रॉ करती हूं. दिस इज अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री एंड दिस इज पॉइंट P. अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ऑब्जर्व करने की क्या है, मैं एक ट्राइंगल बनाती हूं. मैं इंस्टेड ऑफ इसको अभी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं कर रही हूं. आई जॉइन P एंड A. इस ट्राइंगल में आप क्या ऑब्जर्व करोगे, OP, दिस इज द रेडियस ऑफ द यूनिट सर्कल. OA is also the radius of unit circle. So OP is equal to OA. This triangle is again isosceles, right? Triangle OPA. एक इंटरेस्टिंग बात इसमें ऑब्जर्व करने की यह है कि अगर एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल में आई हैव फिक्स्ड वन एंगल है 60 डिग्री और मैंने बोला था कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स विल बी इक्वल. सो इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल, इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है.
तो अगर एक एंगल 60 डिग्री ऑलरेडी फिक्स कर दिया और बाकी दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो उन दोनों एंगल्स का सम इट हैज टू बी इट इज 120 whether they are equal or not, but because they are equal so both the angles will be 60 degree. तो इससे हमें क्या मिल गया कि अगर मेरे पास आइसोस्केलिस ट्राइंगल है और एक 60 डिग्री एंगल है, देन इट विल ऑटोमेटिकली बिकम इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इससे एक एंगल फिक्स करते ही दिस विल बिकम इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल से हम क्या समझते हैं? आइसोस्केलिस जिसमें टू साइड्स इक्वल थी. एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल व्हेन ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल. ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. नाउ ये हमें समझ में आ गया कि तीनों एंगल इसके 60 डिग्री हैं और ये साइड्स बराबर हैं. नाउ तीनों साइड्स बराबर हैं. नाउ इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम P on OA, ये मेरा M है, देन इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कि जब मैं इसको यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगी, दिस विल बाइसेक्ट दिस एंगल and this will also bisect this side OA. So OM is half of OA. If you drop a perpendicular in an equilateral triangle, this will bisect OA. So PM will bisect OA into two parts. इससे क्या फायदा होगा? If it bisects OA, then OM will become half because OA is 1 unit. When it become half, और already हमें cos theta की definition क्या है? The projection of OP on OA, which is OM, is cos of that angle. तो cos 60 becomes half. तो यहां पर आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ही डायरेक्टली cos of 60 degree angle निकाल सकते हो. So because this is half, OM by definition is cos of 60 degree. So cos of 60 degree becomes half. अब हमें और क्या निकालना है? Sin of 60 degree, which is the projection of OP on OB. वो कैसे निकालेंगे? इसका मतलब हमें क्या चाहिए? PM. Again, this is a right angle triangle. We know that OP is 1 unit because it's a unit circle. OPM is a right angle triangle. Again, using Pythagoras theorem, you can calculate PM. तो हम जब Pythagoras theorem यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं OP square is equal to PM square plus OM square. 1 is equal to PM, we have to find, plus 1 by 4, 1 by 2 square. PM, it will give PM as 1 minus 1 by 4, 3 by 4, root 3 by 2. And what is PM? PM is equal to projection of OP on y-axis, that is ON. And this is the definition of sin theta. So sin 60 will be root 3 by 2. I hope this is clear. तो हमने क्या किया यहां पर, एक बार मैं फिर से बताती हूं. मैंने एक 60 डिग्री एंगल OP को 60 डिग्री एंगल ड्रॉ किया. Then I joined P to A. और मैंने आर्ग्यू किया कि OP is equal to OA because these both are radius of the unit circle. So this is an isosceles triangle. Angles opposite to equal sides, that is this angle and this angle, they become equal. Now in this triangle, जब हमने एक एंगल 60 डिग्री फिक्स कर दिया, rest two angles they have to be 60 degree because these two are equal. Then because of this logic,
this triangle also becomes an equilateral triangle. जब ये equilateral triangle बन गया, then we drop a perpendicular from P to P on OA, and this perpendicular will bisect OA into two parts, which will give me OM is equal to half, and by definition OM is cos of 60 degree. So from here I get cos 60 is equal to half. Now using Pythagoras theorem, in triangle OPM I can calculate PM or ON, which is the projection of OP and which is sine 60 degree, and that comes out to be root 3 by 2. So sine 60 is root 3 by 2 and cos 60 is half. So from the same definition of sine theta cos theta, we can also calculate these angles. Now I would like you all to do one small assignment to calculate cos 30 degree and sine 30 degree. If you are not able to do that, please drop a comment below the video and then I will explain the next video. So here I give an assignment. मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार ट्राई कीजिए इस यूनिट सर्कल से कि हम कैसे cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री कैलकुलेट करेंगे. If you face any problem, we'll discuss in the next video. After calculating some important angles for sine and cosine, now we'll move forward to see the signs of these sine and cosine functions in different quadrants of the coordinate system. मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स, आपने बुक में भी देखा होगा कि एक टेबल्स बने होते हैं, लेकिन और स्टूडेंट्स दे ट्राई टू क्रैम दोस टेबल्स कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, उसमें कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है. सिमिलर सेम फ्रॉम द इफ यू फॉलो द डेफिनेशन ऑफ साइन कोसाइन, जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया, अब हम देखेंगे उन्हीं डेफिनेशन से ये ऑब्वियस होगा कि उन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन क्या होंगे. सो देखते हैं कि अब हम उनके साइन कैसे लिखेंगे. ऑल्सो आई विल टेल यू इन दिस वीडियो अबाउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज टू इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, उसका और डोमेन और रेंज का क्या मतलब है वो मैं बताती हूँ आपको. So let us continue from where we left in the last video. Before discussing about the sign of these functions, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बताना चाहती हूं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ऑलवेज जब हम जो हमारा एंगल है, when we are that angle we are measuring from the x-axis. If we are measuring that angle in the anti-clockwise direction, that is considered to be positive, and if the same angle is measured from the x-axis in clockwise direction, हम उसको नेगेटिव लेंगे. यहां से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आप देख सकते हैं. इफ दिस थीटा इज मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव होगा. मैं इसका प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन ओए, मेरा ओएम है. ठीक है, तो ओएम मेरा कितना हो गया? बाय डेफिनेशन ओएम इज cos theta. Now, if the same angle I take which I measure from the x-axis in the clockwise direction, this will be minus theta. लेकिन और इस पॉइंट को मैं P प्राइम लिख देती हूं. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने की क्या है, इस OP प्राइम का प्रोजेक्शन ऑन द x एक्सिस विल बी सेम एज OM, लेकिन मेरा एंगल कितना है? माइनस थीटा. तो OM यहां से
OP प्राइम का प्रोजेक्शन, दिस वाज द प्रोजेक्शन ऑफ OP on x-axis. Now again OM is equal to cos of minus theta, projection of OP prime on x-axis. तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपको क्या मिलती है, cos of theta is equal to cos of minus theta. तो इसमें भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑब्वियस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ cos थीटा. सिमिलरली अगर मैं यही आइडेंटिटी sin थीटा के लिए लिखना चाहती हूं, हियर यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर फ्यू सेकेंड्स. मैं बार बार आइडेंटिटी वर्ड का यूज कर रही हूं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी, व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इक्वालिटी. आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल द एंगल्स. ओके, उसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे. नाउ आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा कि अगर मैं साइन थीटा की डेफिनेशन यूज करूं तो तब इस एंगल के लिए फॉर थीटा एंड माइनस थीटा के लिए क्या आइडेंटिटी होगी. तो कैसे निकालेंगे हम, ओपी का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस ओ एन एंड ऑन माइनस वाई एक्सिस एन प्राइम. तो ओ एन कितना होगा, ओ एन इज बाय डेफिनेशन इज साइन थीटा. लेकिन जब मैं माइनस थीटा के लिए लिखती हूं साइन, तो उसका प्रोजेक्शन कितना होगा, माइनस ओ एन प्राइम, क्योंकि अब मेरा ओ एन प्राइम इज पॉइंटिंग इन द माइनस वाई डायरेक्शन. तो यहां से मुझे एडिशनल माइनस साइन मिल जाएगा. तो मेरी आइडेंटिटी कैसे चेंज हो जाएगी, ओ एन प्राइम दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा और ओ एन प्राइम दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओ एन. तो इन दोनों को से जब मैं आइडेंटिटी लिखती हूं, दैट विल बी साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा. यह आइडेंटिटी भी आपने बार बार ट्रिग्नोमेट्री में यूज की होगी. सो दीज टू इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज you can directly observe from the same definition of sin theta and cos theta. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं यहां एम्फसाइज करना चाहती थी, डोमेन और रेंज के बारे में. मैं एक सेपरेट वीडियो, अब अगर डोमेन और रेंज आपको नहीं पता है तो आप उसका एक सेपरेट वीडियो मैं फंक्शंस पे बनाऊंगी. आप उसमें जिसमें कि in which I will calculate the domain and range of many functions, so you can refer that. लेकिन here in short अगर मुझे sin थीटा और cos थीटा का डोमेन और रेंज निकालना है from the same unit circle, तो क्या होगा. तो डोमेन का मतलब क्या है, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos थीटा को लिखती हूं y इज इक्वल टू cos थीटा. ठीक है, तो थीटा क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ थीटा अलाउड, दैट इज कॉल्ड एज डोमेन ऑफ दैट फंक्शन. और थीटा की वैल्यूज रखने के बाद कॉस कोसाइन ऑफ दैट एंगल क्या वैल्यूज देगा, इट मींस द वैल्यू ऑफ वाई क्या क्या हमें मिलेंगी, दैट इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ दैट फंक्शन. सो दिस इज वैलिड फॉर ऑल द फंक्शंस. ये सिर्फ साइन थीटा या कॉस थीटा की बात नहीं है. कोई भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर लिखा है तो आप उसका डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं. एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, विल सी कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है फर्दर हमें आगे चीजें पढ़ने के लिए. तो यहां पर आप देखोगे कि फ्रॉम द सेम यूनिट सर्कल, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि थीटा की वैल्यू में क्या रख सकती हूं, ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा आर अलाउड. तो थीटा कुछ भी वैल्यू ले सकता है. तो इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का डोमेन क्या हुआ, दैट इज अ सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज. सो डोमेन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज द सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज. लेकिन उसका रेंज क्या है कि फॉर ऑल दोस थीटा
साइन थीटा और कॉस थीटा हमें क्या वैल्यू देगा। तो यहां पर यूनिट सर्कल से आप बहुत सी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने शुरू में ही यहां कोऑर्डिनेट्स लिखे थे ABCD के। इन कोऑर्डिनेट से आपको क्या पता चलता है कि cos थीटा और की वैल्यू कहां से आती है, फ्रॉम द प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस यू विल गेट इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। द मैक्सिमम वैल्यू जो आपको मिलेगी वो होगी +1 और द मैक्सिमम वैल्यू ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस विच यू विल गेट इज -1। तो यहां से ये क्लियर है कि आप जो cos थीटा की वैल्यूज हैं दैट विल वेरी फ्रॉम -1 to 1 फॉर ऑल द सेट ऑफ रियल वैल्यूज। अब कुछ भी थीटा की वैल्यू रखो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज -1 to 1। सिमिलरली sin थीटा की वैल्यूज आपको कहां मिलेंगी, इट इज प्रोजेक्शन ऑन द y एक्सिस। तो इस कोऑर्डिनेट से आपको ये क्लियर है कि sin थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव y एक्सिस पर 1 है मैक्सिमम वैल्यू और नेगेटिव y एक्सिस पे -1 है। तो माइनस इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम -1 to 1 फॉर ऑल द सेट ऑफ रियल वैल्यूज विच यू पुट फॉर थीटा। तो यहां से हमें क्या मिला, अगेन फ्रॉम द सेम डेफिनेशन ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा I can write domain of sin theta and cos theta is set of all real values और जो रेंज है that is इसका मतलब रेंज मतलब y की वैल्यूज दिस विल वेरी फ्रॉम -1 to 1। सॉरी दिस इज नंबर्स। This is another very important result in trigonometry which you all should know. So I'll write here y is equal to cos theta and also you can change y is equal to sin theta. Okay, so I hope this is clear. So all the, once again I'll repeat, the values which theta will take, that is called the domain of that cosine of the angle, and the values which y will take, that is the range of that function. Okay, so this is another important observation which we can make from this unit circle. Now we will try to see, we will see that what are the signs of different trigonometric function in different quadrants. Now the first of all, what is the meaning of quadrant? The rectangular coordinate system, it is divided into 4 quadrants. Quad means 4, 1 by 4. First quadrant, it is 1/4 of the full circle. Okay, so this unit circle is divided into 4 quadrants. This is called as first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. This will help you to calculate the sine and cosine of any angle. For example, some angle is given to you and you are required to calculate the sine of that angle, and also आपको उसका साइन भी लिखना है कि वो एंगल, साइन ऑफ दैट एंगल विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, सो हम कैसे देख सकते हैं, अब देखिए दिस इज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन 4 quadrants. Okay, तो ये भी बहुत इजी है। दिस ऑल्सो गोज विद द डेफिनेशन। तो यहां पर
मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट P लिया है, ये एंगल थीटा. नाउ बाय डेफिनेशन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट cos theta, the projection of this will be on the positive x-axis and the projection of OP on y-axis will again be on the positive y-axis. So the sign of sin theta and cos theta in the first quadrant is positive. Sin theta, cos theta, both are positive. Okay. Now we go in the second quadrant. For example, we are taking some angle 90 plus theta. तब sin theta cos theta का क्या साइन होगा? Then you will take, यहां पर मैंने लिया इस OP, this OP will come here. इसका projection on the x-axis will be on the negative x-axis. So cos theta will become negative. The projection of OP on y-axis will be again on the positive y-axis. So this will remain positive. So second quadrant में your cos theta will become negative, sin theta will remain positive. Maybe I'll just draw the point in quadrants. This P. Okay. So now the projection of this on the x-axis will be negative and the projection of this on the y-axis will be positive. Okay. Then I can write cos theta is negative and sin theta is positive. Now let us see. And also for this point, when I am taking in second quadrant, theta will be till here. Let us take theta prime. So cos theta prime. Okay. Now I take this point in third quadrant. So if I take here point P. Now you can guess. You can pause the video for 1 minute, for a few seconds, and then you can think about the signs in third and fourth quadrant. So you might have thought here now the angle will be from here to here. The projection of this on x-axis is again on a negative axis. So cos theta is, you can take theta double prime negative, and the projection of this on y-axis is also on minus y-axis. So sin theta will also become negative in the third quadrant. Now if I take the point P here in the fourth quadrant, then the angle will be till here, from here to here. Always the angle I am taking in the anti-clockwise direction from the x-axis. The projection of OP on the x-axis will now become positive and the projection of OP on the y-axis is still negative. So in the fourth quadrant, cos theta will become positive and sin theta remains negative. So this is how easily you can see the signs of sin theta and cos theta in different quadrants. There is no need to cram that table which is given in the books. That table is written based on this understanding. So if you have this in mind, you can quickly check that in which quadrant sin theta or cos theta will take positive values or negative values. Okay. So this was another important thing which I wanted to tell you all. Okay. So now moving further
what else I would like to discuss? Yes. So from long time, from the last video and this video, I am talking about the projections. Okay, that this cos theta and sin theta basically are the projections of the position vector on the x and y axis. You may recall that I have made few videos on simple harmonic motion before this, and there very important point which I would like to make here is that if a particle is moving in a uniform circular motion, so if this point P is assume that it's a particle and that is moving on in a uniform circular motion, okay, on this circle, then its projection, so what will be its projection on the x-axis? You can also take y-axis. So for example, if I take x-axis, its projection OP, when the particle is at position A, its projection will be OA. If particle moves further, then its projection will be somewhere here. If particle is at P, its projection is here. If further particle moves, its projection will be here. If particle is at B, its projection will be at the center, right? 0. So basically, what you will observe that if a particle is moving in a uniform circular motion, then its projection on the x-axis or y-axis will execute simple harmonic motion. And this is very beautiful. Why? Because you can see that there in my videos I have written the solution of the simple harmonic motion as x is equal to a sin omega t, a cos omega t. You can take that. And here from the definition of my cosine of that angle, you can see that if this theta is omega naught t, then this x, which is the displacement of that particle from the origin, from the center to the extreme position and back, this x is, if it is unit circle, it is 1. If it is not, then you can take a cos of omega naught t. This theta is omega naught t. So you can relate this from the which I have discussed in the simple harmonic motion. So this is very nice that if you are able to relate the different things, with whatever we learn in physics and maths, they all are related. It's not a separate thing. Then you can appreciate that concept. Okay.